Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, in the previous video, we have completed the book exercises of chapter number 9, Water a Wonderful Liquid. Today, we will start the question answers. Question 1. Which are the three forms of water? Which are the three forms of water? Name them. So, three forms of water are solid, liquid and gas. Three forms of water. Three forms of water are solid, example ice. Okay, then liquid, example water. Third is gas, example water vapor. Okay, so you can take a screenshot. Three forms of water are solid, liquid and gas. Solid form is ice, liquid is water and gas is the water vapor. Question 2. Explain the process of evaporation with the help of an example. With the help of an example. So, evaporation is the process in which water changed in the form of a water vapor on heating. An example is dry of the clothes. Okay, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज द एग्जाम्पल. क्योंकि वेट कपड़े होते हैं, जब आप उसे डाल देते हो सूखने के लिए तो आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द क्लोथ्स बिकम ड्राई. उसमें से वाटर क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है. सो नोट डाउन द आंसर. द प्रोसेस by which water changes to the process by which water changes to water vapor on heating. Is called
evaporation. An example, for example, drying of clothes. So the process by which water changes to water vapor on heating is called evaporation. Is it clear? And for example, drying of clothes. You can take a screenshot. How does water change its form in nature? Question 3. How does water change in form change its form in nature? So how does water change in form in nature means we have to explain what is a water cycle. क्योंकि firstly the water is it will change in the form of a water vapor, then it become very light water vapor. In the gaseous form it is very light and it rises up, and when it come in the contact of a cool air, then the process of condensation take place. On cooling, again the water vapor change in the form of a water, and these small drops of water join together to form a clouds. Okay, when the drops of water is very heavy in the clouds, then they start coming down in the form of a rain. And in the areas where there is climate is very cold, so the water droplets freeze also and they come in the form of a snow also. That is in this manner the water changes form in the nature. So note down the answer. Water change in nature by, first is during heating of river, sea, ocean, found by the sun. Okay, water change into water vapor. Second step, in the sky when water vapor comes in contact with cold air, it changes in water drops. Third point,
इन वेरी कोल्ड रीजन, रीजन मतलब होता है, और प्लेसेस भी लिख सकते हो, रीजन मतलब भी एरिया होता है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस द वाटर ड्रॉप reach in ice and comes down as snow. So this is a complete water cycle. Okay, you can take a screenshot. So student, we have completed chapter number 9. Now after this we will start with the new chapter, that is here chapter 10, home sweet home. Home sweet home. So student, what are the learning objective of this chapter? The need of a house and various types of a houses. After studying this chapter, you will understand why you need a house and what are the various uses of the houses, and how to keep our house and surrounding clean. That is also very important. If your surroundings are clean, then only you are fit and healthy. Okay, so why we need a house? ठीक है, the question arises why we need a house, because the house save us from the harsh climatic conditions. ठीक है, such as summer season, winter season and rainy season. हमें हाउस क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि हाउस हमें वेदर, जो वेदर से क्या बचाता है हमें हाउस. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समर्स में बहुत ज़्यादा वेदर कैसा होता है, हॉट होता है. इवन पीपल इग्नोर टू गो आउटसाइड देयर हाउसेज एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून में जो वार्म एयर चलती है जिसको कि हम लोग लू बोलते हैं, उससे अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर रह जाओ घर से समर सीजन में, तो हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ, आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए, आपको फीवर भी आ सकता है. ठीक है, और ऐसे पर्सन को जिसको हीट स्ट्रोक लग गया हो तो उसको सबसे पहले शेड में ले जाना चाहिए. ठीक है, लाइम वाटर उसे ड्रिंक करने के लिए देना चाहिए. शुगर और वाटर भी, शुगर को भी वाटर में, शुगर साल्ट को भी वाटर में ऐड करके आप उसे दे सकते हो. ठीक है, सो ये आपको हर्ष वेदर कंडीशन से बताता है. इन द सेम मैनर इन द विंटर सीजन द वेदर इज वेरी हॉट, अरे सॉरी, इन द विंटर द वेदर इज वेरी कोल्ड. सो एट दैट टाइम द कूल विंड ब्लो, उस समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आप अपने घर के अंदर सेव होते हो, आप अपने घर के विंडो डोर सब बंद कर लेते हो, तो कूल एयर आपके घर में नहीं आती है, तो आप अंदर कैसा रहता है, अंदर से आपका हाउस कैसा रहता है, वार्म रहता है. ठीक है, आपका हाउस कहता है वार्म रहता है. और इन द सेम मैनर रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा जब बरसातें होती हैं, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो आपके लिए सबसे बेस्ट शेल्टर क्या है, आपका हाउस है. ठीक है, सो ये आपको हर्ष वेदर कंडीशन से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है, आपको और आपके बिलोंगिंग्स को. हम घर में बहुत सा सामान रखते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रखा है, तो ये आपको वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है, ये आपको थीव्स से भी सेफ रखता है. ठीक है, और आपकी बिलोंगिंग, जो सामान आपने अपने हाउस में खरीद के रखे हैं, उनको भी ये सेफ रखता है. ठीक है, दैट इज द रीजन द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड इन द ओल्ड टाइम की बात करें तो अर्ली ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते थे? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ए फूड एंड दे
स्टे इन द, वो शेल्टर कहाँ लेते, केव्स में, जो गुफाएं होती थी फॉरेस्ट में, जंगलों में, उन्हीं में वो शेल्टर बनाते थे। स्लोली स्लोली उसे नए ह्यूमन बींग्स ने ट्री पे हाउस बनाना स्टार्ट किए। फिर उसके बाद फर्दर आगे जाते जाते उसने मड ये सब के हाउस, कच्चे हाउस बनाना स्टार्ट कर दिए, और इसके लिए मटेरियल उसको कहाँ से मिला, उसी की सराउंडिंग से। ठीक है, स्लोली स्लोली चेंजेस आती गई ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। ठीक है, अब वाई वी नीड ए होम, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और टाइप्स ऑफ हाउसेस, अर्ली मैन जो बता ही दिया, केस में रहते थे और अंडर द ट्री, और सम टाइम ही मेड ट्री हाउसेस। ट्री हाउस मतलब हाउस पे ही, ट्री पे ही हाउस बना के ऊंचाई पे रहते थे, क्योंकि उनको खतरा होता है किससे, वाइल्ड एनिमल से, स्पेशली कार्निवोरस एनिमल से, बिकॉज वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते थे। तो वो सोचते थे कि ऊंचाई पे रहेंगे तो वो एनिमल्स उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, अब देखो लोगों को कच्चा हाउस और पक्का हाउस, अब आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, लोगों को कच्चा और पक्का हाउस भी बनाने आने लगा। तो कच्चा हाउस क्या होता है बेटा, कच्चा हाउस, कच्चा हाउस, ओके, हाउस विच इज जनरली मेड, मोस्टली आपको ये हाउस विलेजेस एरिया में मिलेगा, और स्पेशली जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ कच्चे हाउस बहुत होते हैं, क्योंकि ये हाउस मड, इन हाउस की जो वॉल्स होती है ना बेटा, वो मड की होती है, मिट्टी की होती हैं, और बैम्बूज यूज करते हैं, पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रा यूज करते हैं। ठीक है, जो लंबी वाली घास जो होती है, ठीक है, ये सब चीजों को, दे आर मेड ऑफ वुड, स्ट्रा एंड मड। रूफ ऑफ ए हट इज जनरली मेड ऑफ स्ट्रा। ठीक है, और ये हाउस क्या होते हैं, हाँ, कच्चा हाउस क्या आता है, जहाँ पे वेदर बहुत हॉट होता है वहाँ मैक्सिमम कच्चे हाउस बहुत ज़्यादा होते थे ओल्ड टाइम में। अब तो धीरे धीरे सारे लोग पक्के हाउसेस बना रहे हैं, क्योंकि पक्के हाउस बनने के बाद कई सालों तक वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। और कच्चे हाउस में क्या है, उसकी रेगुलर आपको रिपेयरमेंट करानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। जब बारिश आएगी, मड वाली वॉल्स होगी, बहुत से मिट्टी बह जाती है, तो आपको रेगुलर उसके क्या करना पड़ता है, उसकी रिपेयरमेंट करनी पड़ती है कच्चे हाउस की। सो ये सब हाउसेज अब स्लोली स्लोली कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि सबसे बेटर है, पैसा तो लग रहा है लेकिन पक्का हाउस बन जाएगा तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, तो अब देखो कच्चा हाउसेज मोस्टली किसके बनते हैं, वुड के, स्ट्रा के, मड के। ठीक है, और ये रूफ में आल्सो मेड ऑफ टिन और अदर मॉडर्न मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो एवरेस्ट की चादरें भी आने लगी हैं, एवरेस्ट की बनी बनाई सीमेंटेड होती हैं, वो आपको शॉप में मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपके कच्चा हाउस। ठीक है, पक्के हाउस किससे बनते हैं, अब पक्का हाउस की अगर हम लोग बात करें बेटा, पक्के हाउस को हमने स्ट्रॉन्ग हाउस क्यों बोला है, क्योंकि पक्का हाउस किससे बनता है, ब्रिक से, जो पक्की ईंटा, ईंटा भी बनाई जाती है, ईंटा मिट्टी से ही बनती है, मड से ही बनती है, उसको बेक्ड करते हैं, उसको पकाते हैं तो वो इतनी हार्ड हो जाती है, बनती ये भी मड से ही है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, उससे उसे बेक करते हैं, आग में गर्म करते हैं, जिससे कि वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो आपका पक्का हाउस बनता है, ब्रिक से बनेगा, स्टोन्स यूज होंगे, पिबल्स यूज होंगे, सैंड यूज होगा, सीमेंट यूज होगा, आयरन रॉड यूज होंगे, वुड यूज होगा। तो दीज आर द थिंग्स बाय विच द पक्का हाउसेज आर मेड। और आज के प्रेजेंट टाइम की बात करो बेटा, डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और हमारे पास लैंड बहुत लेस है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आज के डेट में आप लोग सिटीज़ एरिया में देखते होंगे बहुत से मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं। मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में 40, 50 अप टू 100 फैमिलीज एक संग रहती हैं। इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं जिसमें कई फैमिली एक संग रह रही हैं। और ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लैंड क्या है, लेस हो गया है। तो लैंड लेस हो गया है, तो अब लोगों ने, क्योंकि जब भी हम किसी चीज पे कोई लैंड, जब भी हम लोग लैंड को फ्री करते हैं बाय कटिंग द ट्रीज और उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो वो लैंड हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो यूज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते लैंड कवर होता चला जा रहा। तो अब शहरों में आप देखोगे मल्टी स्टोर्स बिल्डिंग्स हैं जिसमें कई फैमिलीज रह रहे हैं। वी फाइंड और टाउन एंड सिटी हैव दीज टाइप्स ऑफ हाउस, इवन इन विलेज पीपल आर स्टार्टिंग बिल्डिंग पक्का हाउस। वही बात जो मैंने अभी को जस्ट बताई कि अब धीरे धीरे, पहले आप विलेजेस में जाते होगे तो मैक्सिमम हाउस आपको मड वाले मिलते होंगे, लेकिन स्लोली स्लोली अब लोगों ने, में अब आप विलेजेस में भी जाओ बेटा तो लोगों ने पक्का हाउस बनाना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की इतनी चीजें आ गई हैं कि आप पक्के हाउस में भी कंफर्टेबल रह सकते हो।
फैन चला लो, कूलर चला लो, पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो 2-3 एसी लगा लो घर में। तो पक्का हाउस जो होते हैं बहुत हॉट होते हैं, क्योंकि ये स्टोन, वुड, सैंड जिसे बने। पक्के हाउस की वॉल को कभी आप समर में अपने घर की वॉल को टच करोगे तो लगेगा स्किन बर्न हो गई। आप बिना स्लीपर पहने रोड पे नहीं जा सकते, अपने घर के आंगन में आप नहीं घूम सकते, क्योंकि वहां डायरेक्ट सनलाइट आ रही होगी, वो इतना हीट हो जाता है कि जैसे लगता है कि बर्न हो गए, हमारी स्किन बर्न हो गई। लेकिन आज इतनी चीज़ें हैं जिसने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है। लोग घर में फैंस यूज़ कर रहे हैं, लोग घर में कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, लोग घर में एसी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इन प्रेजेंट टाइम यू विल सी नंबर ऑफ कच्चा हाउस आर डिक्रीजिंग। नाउ पीपल ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अब पक्का हाउस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, पक्का हाउस भी हो गया, ये भी हो गया। स्काई स्क्रैपर्स नाउ अ डे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इन सिटी, ऑलरेडी मैंने बताया कि जगह की कमी होने के कारण आप शहरों में जाओगे तो स्काई स्क्रैपर्स, इनको स्काई स्क्रैपर्स इसलिए बोला गया क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा स्टोरीज हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरी हैं, जैसे लगता है इनको देख के कि ये आसमान को छू लेंगी। दैट इज द रीजन इनका नाम स्काई स्क्रैपर्स रखा गया। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शहरों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई मंजिला बड़े बड़े इमारतें होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस। ठीक है, अब जब हम लोग स्पेशल हाउसेस की बात करते हैं बेटा, तो हाउस बनाने के लिए, ठीक है, हाउसेस, स्पेशल हाउसेस, ये तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, व्हाई वी नीड ए हाउस, उसके बाद हमने डिस्कस किया अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे हाउस में रहते थे, फिर नेक्स्ट डिस्कस किया व्हाट इज अ कच्चा हाउस एंड नेक्स्ट इज द व्हाट इज द पक्का हाउस। नाउ स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग स्पेशल हाउसेज। अगर आपको हाउस बनाना है तो उसके लिए क्या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हाउस बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हैं बेटा, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जहां आप घर बना रहे हो वहां का क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम हाउस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मटेरियल अवेलेबल इन दैट स्पेस। ठीक है, अब हम लोग इतने अमीर थोड़ी ना अपना घर बनाने के लिए अमेरिका से सामान मंगवाएंगे, तो हमारे जहाँ पे हम घर बना रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और क्या मटेरियल वहाँ अवेलेबल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हाउ मच मनी द पर्सन कैन स्पेंड। आप अपने ही अगल बगल देखते होगे, जहाँ पे आप रहते होगे, आप देखते होगे कुछ लोगों के घर बहुत बड़े हैं, डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, कुछ लोग सिंगल स्टोरी में रह रहे हैं, कुछ लोग, तो व्हाट इज द रीजन, कुछ हाउसेस बहुत बिग हैं, कुछ हाउसेस बहुत स्मॉल हैं। इट सो इसका डिफरेंस का कारण है बेटा मनी। भाई जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो बहुत बड़ा घर बनाता है, जिसके पास कम पैसा है वो छोटा घर बनाएगा, सिंगल स्टोरी का घर बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट कि हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड फॉर मेकिंग द हाउस। ओके, अब देखो, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज आए, पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ, स्टिल्ट हाउस, इग्लूज, हाउस बोट, कारवान्स एंड टेंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज क्यों आए, इसका रीजन था, इसका रीजन है क्लाइमेट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ में हाउसेस में तुमने 4-5 अलग अलग नाम देखे होंगे अपनी बुक में, स्टिल्ट हाउस, इग्लूज, हाउस बोट, कार्बन टेंट। सो व्हाई द डिफरेंस कम इन द नेम, ड्यू टू द वेदर के अकॉर्डिंग ये हाउस हैं। ठीक है, स्टिल्ट हाउसेस, सबसे पहला है स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट हाउसेस। सो स्टिल्ट हाउसेस ये कैसे हाउसेस होते हैं बेटा, ये उस एरियाज में होते हैं जहां पे एवरी ईयर फ्लड्स कम, हर साल जहां बाढ़ आती है। आसाम में बहुत बच्चों के पापा लोग की पोस्टिंग, आसाम है, मेघालय, ये सब ऐसी जगह हैं। आसाम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण हर ईयर बहुत बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो उसमें लोग भी कितने मर जाते हैं, एनिमल्स डाई कर जाते हैं। तो अब जब वहां के लोगों को पता ही है कि यहाँ एवरी ईयर फ्लड आनी है, तो अब उन्होंने क्या किया, अपने हाउसेस कैसे बना लिए, स्टिल्ट हाउसेस, मतलब नीचे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वुडन पोल लगाए, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग वुडन पोल बनाए, और उसके ऊपर उन्होंने हाउस बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब उन्होंने वुडन पोल्स लगा दिए, क्योंकि जब बारिश का बहुत सा वाटर आएगा ना, तो देखो फ्लड के समय वाटर नीचे से चला जाएगा, तो ये घर के अंदर वाटर नहीं जा रहा है, क्योंकि जब वाटर घर के अंदर आ जाता है तो सारे सामान खराब हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जहां पानी उसमें टच हो वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो वहां के लोगों ने क्या किया कि वुडन पोल के सपोर्ट पे हाउस बनाना स्टार्ट किया, जिससे कि जब
फ्लड आती है तो पानी नीचे से चला जाए और घर में कोई पानी ना जाए, जिससे उनकी लाइफ भी सेफ रहेगी और जो उन्होंने सामान बिलोंगिंग्स जो है इनके खरीद रखे हैं वो भी, उनकी प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी। तो दैट इज द रीजन स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ड इन असम एंड मेघालय ड्यू टू रीजन एवरी ईयर फ्लड कम इन दिस एरिया, सो दिस इज द नीड ऑफ द स्टिल्ट हाउस। ये सब क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं बेटा। ये स्टिल्ट हाउस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इग्लूज। अब देखो इग्लूज, ये इग्लूज द हाउस इज मेड ऑफ स्लैब ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से बनाए गए घर। अब ये हैं आपके ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, आर्टिक रीजन में। अब यहाँ क्या होती है, होल ईयर यहाँ बर्फ रहती है, टेम्परेचर इज इन माइनस। तो यहाँ के लोगों ने दिमाग लगाया कि टेम्परेचर माइनस में, इसका मतलब कि आइस को तो कभी मेल्ट होना ही नहीं है। तो अब उन्होंने, क्योंकि बर्फ के ऊपर लकड़ी के और पक्के घर तुम कैसे बना सकते हो, सोचो, बर्फ के ऊपर लकड़ी का घर बना सकते हो और मटेरियल ले जाने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ के लोगों ने सोचा जब यहाँ टेम्परेचर एवरी ईयर, पूरे ईयर, ऑल द मंथ्स यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो क्यों ना स्नो के घर बना लो। क्यों? क्योंकि वो मेल्ट तो होंगे नहीं। तो जो इग्लूस वाले हाउसेज हैं ये आपको ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन मतलब अंटार्कटिका में देखने के लिए मिलेंगे। और इनकी जो शेप होती है इसको डोम शेप बोलते हैं। इन हाउसेस को क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड हाउसेस। ठीक है, इस शेप को डोम शेप बोलते हैं, इस तरह हाफ सेमी सर्कल, डोम शेप्ड हाउसेस। तो ये हाउसेस कहाँ मिले आपको, अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में। तो ये भी किसकी वजह से बने, क्लाइमेट की वजह से। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं यहाँ अंटार्कटिका में, उनको इस्किमोस बोला जाता है। जो लोग बर्फ के घर बना के रहते हैं उन लोगों को इस्किमोस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। आप लोग तो बहुत तेज बच्चे हो, कितना जल्दी जल्दी समझ रहे हो, वेरी गुड। अब देखो थर्ड हाउस है हाउस बोट्स। अब ये देखो हाउस बोट, ठीक है, हाउस बोट्स। ये हाउस बोट्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे बेटा, कश्मीर में। आपको हाउस बोट कश्मीर में देखने के लिए मिलेंगे। और इंडिया के एक और पार्ट है जहाँ आपको बहुत से हाउस बोट मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको केरला में। केरला और कश्मीर ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे हाउस बोट आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोट के ऊपर हाउस होता है, जैसे आपके घर में सुविधा की सारी चीजें होती हैं जिससे आपकी लाइफ एकदम कंफर्टेबल रहे। आपके घर में फैन भी है, एसी भी है, खाने का सामान, ये सब जितनी भी आप अपने घर में फैसिलिटीज रखे हो, इसी तरह इन हाउस बोट्स में भी फैसिलिटी होती है। और ये क्या है, वाटर पे फ्लोट करते रहते हैं। आपका हाउस किस पे है, जमीन पे है, लैंड पे है। आप उसको इधर से उधर ले नहीं जा सकते कि गर्मी की छुट्टी है तो चलो दादी को दिखा देते हैं हमने नया घर कैसे बनाया, उठाए और ले गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हाउसेज मूव कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर पे हैं। ठीक है, और स्पेशली ये कहाँ देखने के लिए मिलते हैं बेटा, आई रिपीट, दैट इज इन जम्मू, दैट इज इन कश्मीर एंड केरला। फिर है कारवांस। कारवांस देखो ओल्ड टाइम में स्पेशली डेजर्ट एरिया में पीने को पानी ही नहीं होता था, तो जो डेजर्ट वाले लोग थे ना वो बंजाराज उन्हें बोलते थे, जो कारवांस हैं, CARAVANS, कारवांस। तो ओल्ड समय में लोग क्या करते थे, फूड भाई फूड तो सबके चाहिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ फूड दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कारवांस ओल्ड टाइम में इसको बुल खींचा करते थे या हॉर्स खींचते थे। और प्रेजेंट टाइम में भी आपको व्हील वाले हाउस मिल जाएंगे जिसको हाउस ऑन व्हील्स कहते हैं। और इसको आज कौन खींच रहा है, एनिमल नहीं, कार से खींच के लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कारवांस। फिर नेक्स्ट है टेंट। टेंट है बेटा आपका टेम्परेरी हाउस, TNTS। ये जो टेंट्स आया ना बेटा ये आपका टेम्परेरी हाउस है। क्योंकि टेंट क्या है, टेंट के लिए कैनवस क्लोथ चाहिए, रोप चाहिए और कुछ स्टिक्स चाहिए। आप लोग के पापा लोग भी आर्मी में हैं, तो आर्मी पर्सन्स भी कहीं अपना मान लो कहीं गए, भाई सबकी अपने बॉर्डर पे ड्यूटी होती है, कहीं ड्यूटी पे गए तो रात आ गई तो एक टेंट लगा के सबने रेस्ट कर ली उस पर। और जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, जो लोग पर्वत चढ़ते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं, वो सब भी भाई जब पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो रात होगी तो उनको भी तो रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट करने क्या वो अपने घर में आ जाएंगे, तब तो वो पहाड़ चढ़ ही नहीं पाएंगे, बार बार उतर के नीचे आ जाएंगे अपने घर में सोने। तो वो भी अपने संग टेंट्स लेके जाते हैं। और टेंट्स क्या मूवेबल हाउस हैं, इजिली आप फोल्ड कर सकते हो उनको। ठीक है, तो इसे आप टेम्परेरी हाउसेस बोल सकते हो। ठीक है, अब अ गुड हाउस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ए गुड हाउस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, गुड हाउस। नेक्स्ट है
गुड हाउस। अब देखो गुड हाउस में बेटा क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब होता है फ्रेश एयर का आना जाना। तो फ्रेश एयर आपके घर में कैसे आई जाएगी, जब आपके घर में, आपके हाउस में बहुत ज्यादा विंडोज होंगी और डोर होंगे। देखो आज जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाते हैं, क्यों, क्योंकि पहले लोग अपने से ऐसे ही बना लेते थे। अब नहीं, पहले के लोगों के भी घर बहुत अच्छे थे। ओल्ड टाइम में लोग जब भी घर बनाते थे ना तो सेंटर बिल्कुल खाली रखते थे और कंस्ट्रक्शन का वर्क किनारे करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स ले लो, मान लो ये लैंड है, तो अब वो कमरे यहां बनाते थे साइड में, और बीच का पोर्शन बिल्कुल ओपन रहता था, सो दैट प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर कम एंड सनलाइट कम इन द हाउस। ठीक है, तो वेंटिलेशन मतलब होता है फ्रेश एयर का घर में आना जाना। ठीक है, अगर आपके घर में फ्रेश एयर आती है तो आप बिल्कुल फिट और हेल्दी रहोगे। दूसरा क्या है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में फ्रेश एयर, सनलाइट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ने सुना ना ये जर्म्स जो हमें दिखते नहीं आईज से, ये सारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं हमारे जर्म्स। तो जब आपकी सनलाइट आती है ना तो सन की लाइट में इतनी ज्यादा हीट होती है ना, इससे ये जर्म्स मर जाते हैं। देखो जर्म्स, अगर आपके फ्रिज में खाना क्यों नहीं खराब होता है, क्योंकि कूल प्लेसेस पे भी जर्म्स एक्टिव नहीं होते, और ना ही ज्यादा हॉट प्लेस पे। तो सन की जब लाइट आपके घर में एंटर होती है तो उसका बहुत फायदा है, ये आपके हाउस को जर्म्स फ्री कर देता है, क्योंकि सन की हीट से ये जर्म्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, सेफ्टी, अ गुड हाउस मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड रूफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, गुड हाउस वो होता है जिसकी वॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि पक्के हाउस की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी मौसम हो, किसी भी टाइप का वेदर क्यों ना हो, लेकिन वो आपको सेफ रख सके। ठीक है, क्लीननेस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लीननेस। ओके, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।